Respected head Department of Mathematics, Diet Anantrang, Mr. Taib Khatana sir, respected lecturers and dear supporting staff, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you all of know that today is the fourth day of this 5 days subject Facebook training program, which is conducted by Diet Anantrang. Today, in this very first session, I, Akif Feroz, welcome you all. In this session, we are going to discuss matrices and determinant. Matrices and determinant is one of the important chapter as far as 12th mathematics syllabus is concerned. This is most important. You all of know that this is very, very important for gaining marks in 10+2 board exam. Besides the board examination, it is also important for different competitive examinations like JEE mains, advanced, or different university courses or college courses. Like if any student wants to join honors degree, matrices and determinant is very, very helpful for such students. So as it is also considered to be one of the simplest topic in whole NCERT book. But when the student pass out from the +2 level and when he wants to join different competitive exams, as I have already mentioned, like JEE mains, advanced, or different honors courses, he faces some problems to solve the questions in matrices and determinant. As I personally observe that when I was teaching for JEE students from last couple of years, I have been assigned for teaching purpose as a faculty member for JEE mains free coaching, which was organized by Vardi Director School Education Kashmir. I saw there the students face a lot of problems to solve the matrices and determinant problems. So I take this opportunity today to discuss matrices and determinant in something different way. I hope you all of know this very well. Matrices and determinant, you are the expert, you are masters of this topic. We today discuss it and we will review all such things which we have already know. So I will start the matrices. Okay, this is the brief outline of this session. We will discuss how matrices looks like, then its types, and there's some properties, and then we will go for a determinant. Okay, let us start with the definition of the matrix. You all know that matrix is nothing but a rectangular arrangement of entries over any field. And this pictorial view, this is the pictorial view which is on the screen of your mobiles or laptops. This is the pictorial view of the matrix. Matrix is generally denoted by a capital letter, some A, X, Y, or Z, and the entries, if it is alphabet, we usually denote it by small letters. And this subscript M cross N means how many rows and how many columns this matrix consists. The first subscript M is denoted for row and N denote for number of columns. And in same wise, if we look into the entries of the matrix,
This I and J, the first subscript I denote for row number and J for column number. So this A22, this 22 gives the position of the said element. 2 means row number and this second 2 means column number. So A22 means this element is in the second row and in the second column. We all are know about this. These are the very similar things. Okay, now we will go to the next slide. We will take, in that case, if this m and n, that is the number of rows and number of columns are same, if m and n coincides, the matrix what we get is known as square matrix of order n. Now the example which I have taken here is the square matrix of order n. We will see different things from this matrix, so that it will be very useful for solving some problems. So we must be go through these 7-8 things. Number first, this line which start from the left corner to the right corner, which consists the elements like A11, A22, A33 and ANN. These are all called diagonal elements. First of all, we must note that every square matrix has two diagonals. Every square matrix possesses two diagonals. One is main diagonal, which starts from the left corner to right corner, which is also known as principal diagonal or simply diagonal. When we talk as simply diagonal, it means we are talking about the main diagonal, which starts from the left corner to the right corner. And the second diagonal is this, which starts from the right corner to left corner, which start from A1n and ends to AN1 is called anti-diagonal. So every square matrix are two diagonals. One is main diagonal, which is also known as principal diagonal, or some books written it as leading diagonal. And this one is called, which starts from right corner to left corner, is known as anti-diagonal. So every square matrix possesses two diagonals. One is principal diagonal and another one is anti-diagonal. And both the diagonals share some common properties, and each element of both the diagonals share a common properties. Like, oh, before we go, we will say second thing, that is super diagonals. Okay, this is known as main diagonal. The elements here are A11, A22, A33. These are called diagonal elements. And all those diagonals which are above the main diagonal, that is this diagonal, this is the above from the main diagonal, this is the main diagonal, and this is the above from main diagonal, this is again one more diagonal which is above from diagonal. These are known as super diagonals, and the elements on these lines are known as super diagonal elements. And in a similar way, all those lines which are lie below the main diagonal are known as sub-diagonals, and the elements on it known as sub-diagonal elements. We are interesting how many elements are there in the super diagonals and how many elements are in the sub-diagonal, which will be very fruitful for in a very later when we discuss some properties of different matrices, and this will be very useful for that time. So I take this opportunity here to discuss it here. So super diagonal, how many elements are in the diagonal? It is very obvious. It is n number of elements. If we have a matrix of order n, we have n number of diagonal elements. For example, if we have a matrix of order 3, so we have 3 diagonal elements. And these all are known as super diagonal elements. And these are n into n minus 1 by 2 elements. So we must note that all those super diagonal elements are in number in n into n minus 1 by 2. And we know that this is the square matrix, and square matrix possesses a very common property, that is it maintains symmetricity at every time. So same will be case here, though all those elements which are in the sub-diagonal elements are be the same as super diagonal elements, and which are n into n minus 1 by 2 number of elements. So diagonal elements possess n elements, and super diagonal elements are n into n minus 1 by 2. And in a similar way, if you count this is sub-diagonal elements, these are n into n minus 1 by 2 elements. And we know that if A is a matrix of order n, it has n into n, that is n square elements. So if we count these diagonal elements, super diagonal elements and sub diagonal elements, we will reach at the point n square. So all those elements are, if we add diagonal elements, super diagonal elements and sub diagonal elements, they are n square in numbers. Okay. No, one more thing, the diagonal elements share the property that in case I and j coincides, which is a very
simple thing that I equal to j in the diagonal element. So every diagonal element possesses a common property, that is I equal to j. And this non-diagonal element is also possess a one common property, that is if you add this subscript I and j, you get one more than the order. Suppose if we have a matrix of order 3, then if we add these non-diagonal element subscripts, that is if we add this I and j, we get 3 plus 1, that is we get 4 in every element. So it shares a common property that I plus j equal to n plus 1. One more thing, which is that if we want to know how many lines we can get from a square matrix of order n, that is if we have, this is the one line, this is the second line, this is the third line, this is the fourth line. If we want to know how many lines they are 2n minus 1 lines. So all those diagonal, super diagonal and side diagonals, if we count all those lines, they are 2n minus 1 numbers. They will be this is the very important things which we use later. So that is why I have mentioned it in here, because when we find out the trivial, non-trivial entries for any such matrix later, which will be become the dimension of different vector spaces, these things will be very useful. So we must be clear about these things. Okay, now we will discuss some types of properties, and then we will go next. Okay, I will start with the rectangular matrix. As you all of know that rectangular matrix in which number of rows and number of columns are not same. So M is not equal to n here. So it may have 2 rows and 3 columns, or 3 columns and 2 rows. And square matrix, once again, it is a special type of matrix in which rows, number of rows and number of columns are same. In if we have m and n coincides, that is number of rows and number of columns are same, we get the square matrix. Okay. Now this is the row matrix. In a row matrix, we know that it contains only a one rows, and we have nothing to do with the columns. When we talk about the row matrix, we have nothing dealing with this number of columns. We have just to see if it has only one row and how many number of columns it has. We have nothing to do with the columns known as the row matrix. Similar is the case with column matrix. If we have a one column and how many rows it has, I have nothing to do with that, is known as column matrix. Okay, this is one more type, that is known as diagonal matrix. Diagonal matrix, a square. First of all, we must be note that a matrix must be a square. A square matrix whose all non-diagonal elements are zero. The definition is a square matrix whose all non-diagonal elements are zero. उसके सारे जो non-diagonal elements हैं वो zero होने चाहिए. उस matrix को हम क्या कहते हैं? Diagonal matrix कहते हैं. और जो ये diagonal elements पे के हैं, इन पे हमारी कोई condition नहीं है. ये कुछ भी हो सकते हैं. ये 1 हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि जब हम definition diagonal की लिखते हैं, उसमें diagonal elements के बारे में कुछ नहीं कहते हैं. ये definition में ये लिखते हैं whose all elements are zero. उसके जो non-diagonal elements हैं, वो सारे के सारे zero होते हैं, except the मेन डायगोनल पे हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट है ये सारे 0 है. तो यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं. जब हमें पता है कि जो लीनियर अलजेब्रा है वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है मैट्रिसेस पोर्शन और दूसरा होता है वेक्टर स्पेस पोर्शन. दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट जो बनता है वो लीनियर अलजेब्रा है. यू ऑल ऑफ नो दैट दिस. तो लीनियर अलजेब्रा में जो दूसरा पोर्शन है वेक्टर स्पेस की जो बेस मानी जाती है दैट इज मैट्रिसेस. और अगर हम कुछ चीजें मैट्रिसेस में ही देख लेते हैं तो वो बाद में हमें वेक्टर स्पेस में वो देखना बहुत आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, वो एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो उसमें आता है वो आता है डायमेंशन फाइंड करना. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं वो डायमेंशन, यहाँ पे भी हम अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो उस टाइम हमें वो डायमेंशन निकालना बहुत आसान लगेगा. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे क्या, अब अगर हम डायमेंशन की बात नहीं करेंगे तो दूसरे एक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इस मैट्रिक्स में अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी है, इसमें कितने ट्रिवियल है और कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है. यानी कि हर मैट्रिक्स के पास आपको दो टाइप के यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे. या तो एंट्रीज जो है वो ट्रिवियल हो सकते हैं या तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो सकते हैं. पहले मैं क्लियर करूंगी एंट्री ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल. ट्रिवियल वो एलिमेंट होते हैं जो हर किसी को पता है कि यहाँ पे क्या आएगा. जैसे हम सेट थ्योरी में देखते हैं कि वहां पे कलेक्शन जब देखते हैं, एवरी कलेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. या तो वो वेल डिफाइंड होगी या नॉट वेल डिफाइंड होगी. वेल डिफाइंड वो होगी जिसका आंसर हर कोई सेम देगा. नॉट वेल डिफाइंड उस कलेक्शन को कहते
कहते हैं जहां पे वेरिएशंस हमें आते हैं। यहां पे भी इसी तरह के हैं, लेकिन अब नेम डिफरेंट है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल वो सारे एंट्रीज है जिनका हमें 100% पता है, हमें नहीं, हर एक को पता है कि यहाँ कौन सी एंट्री आएगी। और नॉन ट्रिवियल एंट्रीज वो सारे एंट्रीज होते हैं जिनका किसी को नहीं पता है, वो कोई भी नहीं बता सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ सकता है। जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है 3x3, यानी कि ऑर्डर 3 लिया मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पे जो एंट्री है A12 की जो एंट्री है, यहाँ पे 100% जीरो ही आएगा, क्योंकि मुझे डायगोनल बनानी है और डायगोनल में जितने नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं वो जीरो होते हैं, तो यहाँ पे जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो कंफर्म है, सेम यहाँ पे जीरो कंफर्म है, 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 यानी कि जितने नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे के सारे जीरो है। ये 100% हमें डिफिनीशन ही बताती है। तो इन सारे एंट्रीज को कहते हैं हम ट्रिवियल एंट्रीज, यानी कि ये सारे एंट्रीज और ये सारे एंट्रीज क्या है, ट्रिवियल एंट्रीज। और जो अब डायगोनल पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 भी लिख सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो यहाँ की जो एंट्री है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंट्री आ सकती है। तो ये वाली एंट्री जो है ये नॉन ट्रिवियल एंट्री है। यहाँ पे 2 है, 2 लिख सकता है, 0 भी लिख सकता है, 4 भी लिख सकता है, जिसको जो मर्जी वो लिख सकता है। तो ये वाली एंट्री भी नॉन ट्रिवियल है और ये वाली एंट्री भी नॉन ट्रिवियल है। तो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन ट्रिवियल होते हैं, और जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ट्रिवियल होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं JEE के एग्जाम में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसी तरह लिखी होती है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, उसका अगर वेक्टर स्पेस में हम जाएंगे तो वहां डायमेंशन यूज करेगा, और अगर ये मैट्रिक्स तक ही रहेगा तो वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल पूछेगा कि बता दीजिए एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, उसमें कितने ट्रिवियल एंट्रीज है या उसमें कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमारे पास ऑर्डर n है तो उसके n नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगे। a diagonal matrix of order n has exactly n number of non-trivial entries। तो उसके पास जितना ऑर्डर होगा उतने उसके पास, अगर n ऑर्डर है तो n नॉन ट्रिवियल एंट्रीज उसके मिलेंगे। तो बाकी सारे ट्रिवियल कितने मिलेंगे, टोटल को n हटा के, यानी कि n स्क्वायर, टोटल n स्क्वायर होता है n स्क्वायर माइनस n। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा बहुत यहाँ ऐड कर लेते हैं कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कंसेप्ट है। इसी तरह हाँ, वही ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल ही बाद में, अगर मैंने रिपीट करता हूं मैं, अगर हम वेक्टर स्पेस पे जाते हैं, अगर हम डायगोनल मैट्रिसेस का एक स्पेस बनाते हैं, उस स्पेस का अगर हमें डायमेंशन देखना होता है तो वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल से ही पता चल जाता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे, एक और टाइप जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है, जिसमें अब फिक्स एक और चीज हो गया है। एक सेकंड, स्केलर मैट्रिक्स में क्या फिक्स हो गया है ये आपको पता ही है। स्केलर मैट्रिक्स में अब ये वाला भी फिक्स हो गया है। अगर यहाँ पे आप 1 लिखना चाहते हो तो ये आपके बस की बात नहीं, अब यहाँ पे 1 ही लिखना है, यहाँ पे भी 1 ही लिखना है, यानी कि जो आपकी पहली एक एंट्री आपकी रहेगी जो नॉन ट्रिवियल रहेगी, और बाकी सारे एंट्रीज आपके ट्रिवियल रहेंगे। ये तो पहले ही डायगोनल ने आपको खत्म कर दिया था कि यहाँ 0 0 आएगा, यहाँ तो 0 0 आना ही आना है। अब यहाँ पे आपकी 3 एंट्रीज है। अगर हम 3x3 की बात करेंगे, आपके 3 एंट्रीज हैं, लेकिन 3 एंट्रीज में भी आपके हैंड में सिर्फ एक ही एंट्री है, वो आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी ये है कि आप कहाँ फिक्स करना चाहते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन आपने एक बार फिक्स किया है, बाकी आपके हाथ से निकल जाता है। तो अगर हम स्केलर मैट्रिक्स का डायमेंशन देखना चाहते तो वो 1 ही रहेगा, यानी कि इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो कहीं पे भी आप डायगोनल में फिक्स कर लो, लेकिन बाद में वो रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 लिखा है तो वो 1 1 चला जाएगा। आपकी चॉइस ये है कि आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक डायगोनल ही होती हैं, या स्केलर भी हम बता सकते हैं, जिसकी मेन डायगोनल में सिर्फ 1 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 फिक्स है, यहाँ पे भी 1 फिक्स है, यहाँ पे भी 1 फिक्स है, यहाँ पे भी 1 फिक्स है। बाकी सारे जब ये डायगोनल से आते हैं तो ये सारे 0 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो, अगर हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की बात करेंगे वो कितने हो गए, कितने हो गए यहाँ पे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, कोई भी नहीं, यहाँ पे 1 फिक्स है। ये हर किसी को पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है ही नहीं कोई। सिमिलर केस नल मैट्रिक्स में है या जीरो मैट्रिक्स में है, इसमें हर एक एंट्री 0 0 है, फिक्स रहता है पहले।
अब यहाँ पे एक और टाइप है मैट्रिक्स का, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें पहले हम अपर और लोअर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जिसके बिलो द डायगोनल सारे जीरो है। अपर की बात, अपर ऊपर जो टाइटल है वो अपर ट्रायंगुलर है, लेकिन जो बात हो रही है वो लोअर ट्रायंगुलर में हो रहा है कि जीरो होने चाहे लोअर में, अपर की बात नहीं है। टाइटल अपर ट्रायंगुलर है, ये याद रखना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें डिफाइन करना है, लेकिन जो बिलो द मेन डायगोनल है वो जीरो होनी चाहिए। तो ऊपर में कोई कंडीशन नहीं है आपको, ना डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशन है, ना ही आपको डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में कोई कंडीशन। ये सारे के सारे जीरो भी हो सकते हैं ऊपर भी। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं, ये जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन में हमें ये कोई कंडीशन ही नहीं देता है। डिफिनेशन में ये बता रहा है कि जो बिलो द मेन डायगोनल है वो जीरो आने चाहिए। तो ऊपर कुछ भी आ सकता है, तो 0 0 0 भी लिख सकते हैं, 187 जैसे लिखा है वो भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ और एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर में सिर्फ ये फर्क है, जो ये डायगोनल है ये जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे ये भी जीरो होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज भी जीरो होनी चाहिए स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर में। जब हम स्ट्रिक्ट की बात करेंगे तब डायगोनल एंट्रीज भी जीरो होनी चाहिए, और अपर ट्रायंगुलर में जरूरी नहीं है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। और अगर हम इसके नॉन ट्रिवियल या ट्रिवियल एंट्रीज की बात करेंगे, देखिए ये यहाँ पे फिक्स है, ये तीन एलिमेंट फिक्स है। अब कितने बचे हैं ऊपर वाले एलिमेंट, एक तो डायगोनल बचा है, डायगोनल पे आपकी मर्जी है, आप जीरो लिखना चाहे, वन लिखना चाहे, कुछ भी लिख सकते हैं। और जो आपके ये सुपर डायगोनल एंट्रीज हैं ये भी आपके आपके हाथ में हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितने नॉन ट्रिवियल हमें बनेंगे, एक तो ये डायगोनल, हमने पहले जब हम स्टार्ट किया था हमने बताया था डायगोनल एंट्रीज में होते थे एन एलिमेंट्स, तो एक हमें एन एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और सुपर डायगोनल में कितने एलिमेंट मिलेंगे, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एंट्रीज मिलेंगे। तो अब इन दोनों को जब हम मिला लेंगे, डायगोनल एंट्रीज को और सुपर डायगोनल एंट्रीज को, यानी कि n प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू शायद बनता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज या बाद में डायमेंशन की बात करेंगे, वो मिलेगा आपको n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो इसी तरह आप लोअर ट्रायंगुलर सेम इसी तरह फॉलो करेगा कि अब डायगोनल के बिलो जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के ऊपर जो है वो सारे जीरो होंगे। यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट में वही सेम रहेगा कि देखिए यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे थे, ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर है और ये स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर है, इसमें जो है डायगोनल एंट्रीज भी जीरो होते हैं। और अगर हम यहाँ इस वाले केस में, स्ट्रिक्ट वाले केस में डायमेंशन या नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की बात करेंगे, उसमें एन पे आपका कोई हक नहीं रहेगा, यानी कि डायगोनल एंट्रीज में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी डायगोनल एंट्रीज वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज फिक्स अब हो गए हैं 0 0 0, ठीक है। तो ट्रायंगुलर जो लास्ट में थी, तो कुछ भी हो, आपको लोअर ट्रायंगुलर हो आप इसको ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, आपको अपर ट्रायंगुलर मिले आप इसको ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और टाइप जो मैट्रिक्स की है वो एडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एडोम्पोटेंट मैट्रिक्स सेम है जैसे हम सेट्स में या बाकी चीज में ऑपरेशन देखते हैं कि किसी भी दो को एक मल्टीपल से ऑपरेट करो, उसके बाद जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स है अगर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको दो बार मल्टीपल करने के बाद सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि ए स्क्वायर आपका सेम ए ही मिलेगा, तो उस टाइम आपका जो मैट्रिक्स होता है वो एडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये भी आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसको कोई पॉजिटिव पावर करने के बाद वो ए ही देता है, उस पॉजिटिव पावर को हमें एक कम करना है, उसको इसका बोलता है पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए एक मैट्रिक्स है और मुझे वो A5 तक ए नहीं बनी है, ए पावर 6 में वो पहली बार ए बन गया, यानी कि ए इंटू ए मुझे ए नहीं बना, कुछ और बना है, ए स्क्वायर भी ए नहीं बना है, A3 पे नहीं बना है, A4 पे नहीं बना है, फॉर एग्जाम्पल ए पावर 5 पे वो ए बनता है, तो ए पावर 5 पे वो फर्स्ट टाइम ए बनता है, तो 4 इसका पीरियड रहेगा, एक कम रहता है, ठीक है। ये पीरियड की डिफिनेशन है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स की पीरियड बताना है तो हमें बताना है ये किस पावर पे वो ए बनता है, उस पावर को हमें एक कम करना है। जहां पे जो डिफिनेशन लिखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू बी पीरियोडिक if for some positive integer k such that a power k plus 1 equal to 1 and k if k is the least positive integer है ना, सबसे छोटा होना चाहिए, then k is called the period of a। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप एडोम्पोटेड भी इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। एडोम्पोटेड इज अ पीरियोडिक ऑफ पीरियड 1, क्योंकि स्क्वायर पे एडोम्पोटेड ए बन ही जाएगा, तो उसका एक कम करने के बाद दैट इज 1 रहेगा, तो एडोम्पोटेड मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक, इज एन बेस्ट एग्जांपल फॉर पीरियोडिक ऑफ पीरियड 1।
नाउ विल मूव फॉर दिस निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट का भी इसी पावर के साथ वास्ता है। आप किसी भी मैट्रिक्स को निलपोटेंट बता सकते हैं अगर वो किसी भी पावर पे कहीं भी जाके वो नल मैट्रिक्स देगा। यानी कि अगर आपका कोई भी पावर हो, a पावर 1 2 3 4 5 6 किसी भी पावर पे अगर वो जीरो देता है तो उसको आप कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है। यानी कि कभी भी वो मल्टीपल ऑपरेट करने के बाद जीरो बन जाता है। जीरो का मतलब यहाँ पे वो मैट्रिक्स देता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। तो आप कहोगे कि हाँ ये निलपोटेंट है। और जिस पावर पे वो जीरो देता है उसको इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि अगर 5 पे a बनता है तो 4 पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। जहां पे जीरो बनता है वही उसका इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पे पीरियड कहलाता है और यहाँ पे इंडेक्स कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, देखिए दिस एग्जांपल फॉर दिस निलपोटेंट, ये डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पे ये एग्जांपल जो है ये निलपोटेंट है और इसका ये 3 पे 0 बनेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स। मैं यहाँ जानबूझ के इस टाइप के एग्जांपल को लाया हूँ क्योंकि अगर आपके डायगोनल ये सॉरी ट्रायंगुलर में ट्रायंगुलर होगी, चाहे अपर हो या लोअर हो, और इसमें अगर आपको जो आपकी एक डायगोनल सुपर में हो या लोअर सब डायगोनल में हो, आपको देखना है कितने कंसेक्यूटिव नॉन जीरोस हैं, कितने कंसेक्यूटिव नॉन जीरो। जैसे मैंने यहाँ पे सुपर डायगोनल में 2 कंसेक्यूटिव नॉन जीरो है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों नॉन जीरो है। कंसेक्यूटिव कितने हैं? 2। तो यहाँ पे मुझे ये पता चलता है विदाउट ऑपरेशन, मुझे ये पता चल सकता है कि ए स्क्वायर तक जीरो बन ही नहीं सकता। ये फर्स्ट टाइम जब जीरो बनेगा वो क्यूब पे बनेगा, दैट इज ए क्यूब जीरो बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, याद रखना है। जितनी कंसेक्यूटिव हमें मिलेंगे नॉन जीरो उसके एक बात, मतलब अगर हमें 3 कंसेक्यूटिव मिलते हैं तो 4 पे वो जीरो देगा। ठीक है, एक और मैट्रिक्स है इनवोल्टरी मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीपल करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी देता है आपका तो उसको हम इनवोल्टरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 चीजें, ट्रांसपोज, कंजुगेट एंड ट्रांजुगेट। ट्रांसपोज हमें पता है, किसी भी मैट्रिक्स को रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लो तो जो आपकी मैट्रिक्स बन जाती है, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। दूसरा है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन होती है अबाउट रियल एक्सिस, यानी कि अगर आपका पॉइंट ऊपर कोई भी है x प्लस आयोटा y, अगर आप इसके अबाउट x एक्सिस इसकी रिफ्लेक्शन देखोगे तो रियल आपका रियल ही रहेगा, x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो होता है आपका y पार्ट वो नेगेटिव होता है, और अगर वो नेगेटिव खुद है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो x प्लस आयोटा y की जो रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस है वो x माइनस आयोटा y है। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आयोटा y इज x माइनस आयोटा y। और हम ये डिनोट करते हैं बार से। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर हम उसके ऊपर एक वो लाइन खींचते हैं जिसको बार हम कहते हैं, दैट इज डिनोट फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एंड द फाइनल इज हियर ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब होता है, सॉरी ट्रांजुगेट मींस एक तो आपको ट्रांसपोज भी करना है और आपको कंजुगेट भी करना है, दोनों चीज करके हैं, दोनों ऑपरेशन करना है। जो आपका रिजल्टिंग मिलेगा उसको ट्रांजुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक रिलैक्सेशन ये भी हमारी, हम पहले कॉन्जुगेट करें कोई मसला नहीं, बाद में ट्रांसपोज करें, या पहले ही ट्रांसपोज करें बाद में कॉन्जुगेट करें तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब होता है, देखिए हमें हर एक एलिमेंट का जो आयोटा टर्म है, जो इसकी इमेजिनरी टर्म जो है, उसको इसका साइन हमें चेंज करना है, रियल के साथ हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये 2 ही रह गया, यहाँ पे प्लस माइनस बन गया, क्योंकि ये +3 आयोटा था, ये -3 आयोटा बन गया कंजुगेट करने के बाद। ये आयोटा था, माइनस आयोटा बन गया। 6 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा था x पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये जो मैट्रिक्स हमें बनी है ग्रीन वाली, ये बन गया हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसके बाद मैंने इसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया है, इस वाले मैट्रिक्स को, तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें बन गया है, इसका ये हमें मिल गया है ट्रांजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांजुगेट है तो वो थर्ड वाली है जो रेड में हमने डिनोट किया है। ठीक है, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और टाइप जो यहाँ पे हमने देखे हैं वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको अपने ही ट्रांसपोज के साथ मल्टीपल कर दो और आपको जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो आइडेंटिटी होगी, तो वो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और टाइप जो है, जो आपने सब देखा है, तो हम इसलिए यहाँ पे थोड़ा तेज चलते हैं इन मैट्रिक्स टाइप्स को। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स सेम ऑर्थोगोनल की तरफ होती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि अगर हमें देखिए थीटा, जो लास्ट टाइम यहाँ पे हमने ये जो ट्रांजुगेट किया है, इसको जो हम डिनोट करते हैं लास्ट में, जो ये मैट्रिक्स लास्ट में बनी है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए पावर थीटा। तो ए पावर थीटा का मतलब होता है ट्रांजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज, तो वही थीटा यहाँ पे है। अगर आप एक कोई भी मैट्रिक्स है उसको अपने ट्रांजुगेट के साथ आप मल्टीपल करो, जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा, अगर वो
आई मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी उसको आप कहोगे यूनिटरी मैट्रिक्स। सेम वही अगर आप इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटा दोगे तो क्या बचेगा लास्ट में? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस केस में हम करते थे? ऑर्थोगोनल में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम यूनिटरी मैट्रिक्स का रियल एनालॉग देखेंगे तो वो ऑर्थोगोनल ही होता है। ये एग्जांपल भी नीचे है। अब एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटेटिव के लिए है, वो है सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन और सिक्यू हर्मिशन। ये चार चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें अगर उसका आईजेथ एलिमेंट और जेथ एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आईजेथ एलिमेंट ऑफ ए इफ कोइंसाइड्स विद जेथ एलिमेंट ऑफ ए देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर लेंगे और उस ट्रांसपोज के बाद उस मैट्रिक्स के में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सेम वैसे ही रहे जैसे ए था, तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक। अगर आप ये मैट्रिक्स देखें, देखिए इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये और ये अपना ये A11 A11, इसमें जो I और J आपने चेंज किया है तो वहां से 1 उठा के यहाँ 1 लाया तो A11 A1 बनी रहेगा, तो इस वाले में कोई टेंशन नहीं है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। और सिक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ijth एलिमेंट नेगेटिव ऑफ j ith एलिमेंट हो, यानी कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स मिलेगा वो नेगेटिव ऑफ a है, तो आपकी जो मैट्रिक्स थी वो सिक्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए A12 ये A21, तो A12 का जो A21 इसका करस्पॉन्डिंग है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? सिक्यू सिमेट्रिक। और जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, देखिए सिमेट्रिक के डायगोनल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है सिमेट्रिक में, क्योंकि हमें A11 के ही बराबर लाना है, तो हम 1 लिखे, -1 लिखे, 0 लिखे, तो वो खुद अपने आप के बराबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप अगर देखोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होते हैं, आप ये जानते हैं, क्योंकि अगर हम Aij लिखना है -Aj के बराबर, तो उस टाइम हमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें कब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको नेगेटिव करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही चीज है, दैट इज 0। तो इसीलिए यहाँ पे 0 आप इसको देख भी सकते हैं, Aij इक्वल टू -Aj करके यहाँ लाके आपको एंट्री सिर्फ ai वाले एंट्री 0 देखेंगे, तो आप उनसे नोन है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक का। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा हर्मिशियन और सिक्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन सिमेट्रिक का ही बिहेव करता है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। अगर ijth एलिमेंट होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ji, यानी कि aij अगर आपके ai के बार के बराबर है, यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करते हो और उसके ऊपर एक कंजुगेट लगाते हो, अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपकी जो मैट्रिक्स थी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A, मैंने इसको बार लगाया, यानी कि जितने भी इसमें आयोटा है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, आपको ये मिल गया है, फिर इसको ट्रांसपोज किया है। अगर आप देखोगे ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि पहली A और A बार पावर T, यानी कि A कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पावर ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांजुगेट जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपके A के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि A जो है ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन है, ठीक है। इसी तरह आपको एक सिक्यू हर्मिशियन है, अगर आपकी एक मैट्रिक्स है और आप इसको ट्रांजुगेट करते हो वो नेगेटिव के बराबर आ रहा है, -a थीटा के बराबर आ रहा है, तो वो आपकी सिक्यू हर्मिशियन कहलाती है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है A, और उसके बाद हमने इसको ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज करने का तरीका इंटरचेंज किया है रोज और कॉलम, फिर उसके ऊपर बार लगाया, यानी कि उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया है, फिर जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो -a के बराबर आ रहा है, -a थीटा के बराबर आ रहा है, तो आप कह रहे हैं ये जो A है आपकी, ये क्या है? ये सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज देखिए ये बहुत सा, देखिए अब हमने सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। देखिए अब हम सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक से बिल्कुल वाकिफ हैं, हमने देखा है सिमेट्रिक क्या होती है, सिक्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, हर्मिशियन क्या होती है, सिक्यू हर्मिशियन क्या होती है। मैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, A और B, ये एग्जांपल 0 हमने लिए है, बोथ सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है और ऑफ कोर्स सेम ऑर्डर का है। तो हमें जो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है 7a³ + 18b⁻6 + 10 आयोटा, हमें ये बताना है क्या ये सिमेट्रिक ही हो सकती है,
सिक्यू सिमेट्रिक हो सकती है, या हम कुछ भी नहीं कह सकते इस दिस मैट्रिक्स जो हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैं इसके बारे में। अगर हमें बोलना होगा कि क्या ये सिमेट्रिक रहेगी, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, हर्मिश, क्या ये कुछ भी इसके बारे में 4 ऑप्शन होंगे, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू रहेगा। ए बी सिमेट्रिक है, ऑफ कोर्स सेम ऑर्डर के रहेंगे और आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर के रहेगा जिस ऑर्डर का आपका ए और बी है। आपको बताना है ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, सॉरी कौन सी वाली होगी, सिमेट्रिक रहेगी या नहीं रहेगी। 7AQ प्लस 18B पावर 6 प्लस 10 आयोटा, क्या ये सिमेट्रिक रहेगी या नहीं। हमने सिमेट्रिक देखा है, हमने स्क्यू सिमेट्रिक देखा है, हमें अब ये क्वेश्चन आ रहा है ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर के हैं, तो क्या ये चीज सिमेट्रिक ही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कोई आंसर करना चाहता है तो चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं, आप अपने अनम्यूट करके ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टोटली 11 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। ए सिमेट्रिक, ए यहाँ पे हमने दोनों को सिक्यू सिमेट्रिक माना है, तब ये रिजल्टिंग जो है ये क्या हो सकता है। फिर हमने ये लिया है क्या ये चीज क्या बन सकता है। इसी तरह हमने ये 11 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर आप में से कोई यहाँ पे हमसे जुड़ना चाहेंगे तो वो चैट बॉक्स में भी आ सकता है या हैंड भी रेज कर सकता है। आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आ सकते हैं या आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हो। क्वेश्चन ये है कि हमारे दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हमें 7AQ प्लस 18B पावर 6 प्लस 10I बोलना है, क्या ये सिमेट्रिक हो सकती है नहीं है। आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके ऐसे भी बोल सकते हैं, आप चैट बॉक्स में आके भी बोल सकते हैं। हमारा रंजीत साहब हमसे जुड़ गया है यहाँ पे। 7AQ प्लस 10B पावर 6 प्लस मोहम्मद रफीक, हाँ सर, हाँ रफीक सर, रफीक सर आप अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। हाँ रफीक सर, चैट क्या रफीक सर आप अनम्यूट भी हो सकते हैं, आप अनम्यूट कर लो या चैट बॉक्स में आओ, मर्जी। सिमेट्रिक, हाँ ये सिमेट्रिक होगी, वेरी गुड, ये सिमेट्रिक होगी क्योंकि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप किसी भी स्केलर से मल्टीपल करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसके कितने टाइम्स भी पावर कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड भी कर लो तो कोई सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके तीनों चीजें 7A क्यूब सिमेट्रिक है, 18B पावर 6 सिमेट्रिक है, 10I जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो तीनों को आपने एडिशन से ऑपरेट किया है, जोड़ लिया है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक बनती है। तो दूसरा भी है यहाँ पे, अगर आप दोनों सिक्यू सिमेट्रिक है, अब दोनों सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अब क्या हो सकता है 7AQ प्लस 18B पावर 9, क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक रहेगी या नहीं रहेगी। 7AQ प्लस 18B पावर 9, तौसीफ सर सिमेट्रिक रहेगी। हाँ चले हम पहले प्रॉपर्टीज में देखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले, ये सारी प्रॉपर्टी जो है सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन और सिक्यू हर्मिशन पे बेस है।
ये पहली प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर एन है, तो आपका बाद में जो बाद वाला जो डायमेंशन है जिसका नाम यहाँ पे हमने नॉन ट्रिवियल रखा है वो कितना हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक स्पेस बनता है, उस स्पेस का अगर आपको डायमेंशन मालूम करना है, जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है वो कितने हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हमने n इंटू एन प्लस 1/2। ये बिल्कुल इजी है। हमने जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है तो उसमें हमने क्या बताया था, जो आई जे वाले एलिमेंट हैं वो ए जे के सेम होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाले एलिमेंट जो आपके डायगोनल पे हैं और जो आपके ऊपर वाले एलिमेंट हैं ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये 1, -1 और 0 ये आपको 100% पता होगी, क्योंकि जो आपने यहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे भी आपको 100% 1 ही लिखना है। यहाँ पे आपने -1 लिखा है तो यहाँ पे भी आपको -1 ही लिखना है। यहाँ पे आपने 0 लिखा है तो यहाँ पे भी आपको 0 ही लिखना है। तो ये जो है सब डायगोनल में जो डायगोनल के नीचे वाले एंट्रीज हैं ये ट्रिवियल है, इनका आपको पता होगा। लेकिन जो डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर जो सुपर डायगोनल्स हैं और डायगोनल एलिमेंट हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने बन जाएंगे, एक तो हमें डायगोनल एंट्रीज देखने प्लस सब सुपर डायगोनल वाले, तो टोटल कितना बनेगा n प्लस n इंटू n माइनस 1/2, तो टोटल बनेगा n इंटू n प्लस 1/2। तो जो इसका डायमेंशन हो जाएगा वो n इंटू n प्लस 1/2 होगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू n प्लस 1/2। सिमिलरली अगर आप सिक्यू सिमेट्रिक पे जाओगे उसमें आपको n कम होगा। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं सिक्यू सिमेट्रिक के वो सारे के सारे जीरोज होते हैं, तो वो फिक्स हैं। जो डायगोनल पे एंट्रीज होते हैं वो सारे 0 0 0 होते हैं। तो अब पता क्या करना है हमें, बस ऊपर वाले एलिमेंट्स यानी कि डायगोनल के ऊपर जो है सुपर डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमें पता करना है। और वो हमने पहले ही देखा था जब हमने मैट्रिक्स का पूरा देख लिया था, तो उसमें n इंटू n माइनस 1/2 ऊपर वाले हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू n माइनस 1/2। तो यहाँ पे ऑल द डायगोनल एंट्रीज सिमेट्रिक ये 0 है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो सकते हैं। सिक्यू सिमेट्रिक के 0 है, लेकिन सिमेट्रिक के डायगोनल एंट्रीज के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हर्मिटियन मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखो, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज देखोगे वो n² आएगा। क्यों n² आएगा? क्योंकि आपके जो डायगोनल के ऊपर जो सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो a प्लस आयोटा b फॉर्म में आते हैं। तो आपका a भी एक चॉइस बनती है, b भी एक चॉइस बनती है, क्योंकि आप जब भी आप हर्मिटियन और सिक्यू हर्मिटियन की तरफ जाते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं, तो वहां पे आपका एंट्री जो होंगी वो a प्लस आयोटा b फॉर्म के होंगे। तो a भी एक रियल है, b भी एक रियल है, आपको a भी देखना है, b भी देखना है। तो इसीलिए आपका इसमें यहाँ पे जो डायमेंशन या जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं वो n² बनते हैं। एक और चीज यहाँ पे जो है डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, वो हमेशा रियल होंगे, ये आपको पता ही है, आपका इसका सिंपल प्रूफ भी है। और सिक्योर हर्मिटियन के भी जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है सेम केस है, जैसे हर्मिटियन का n² आप देखोगे यहाँ भी n² ही होगा। डायगोनल एंट्रीज ऑफ सिक्योर हर्मिटियन ये भी प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 होगा, सिंपल है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी मैट्रिक्स है जो दोनों चीजें हैं, सिमेट्रिक भी है और सिक्यू सिमेट्रिक भी है, या हर्मिटियन भी है और सिक्यू हर्मिटियन भी है, वो एक ही चीज है, दैट इज नल मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लीजिए ये प्रॉपर्टीज हम अभी जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज हमने यूज किए थे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी दो सिमेट्रिक है और सेम ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास सेम ऑर्डर नहीं है तो वो कंपेटेबल नहीं है मल्टीपल के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो सेम ऑर्डर यहाँ पे जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है इट इज ऑफ सेम ऑर्डर, बट इट मस्ट बी नोट दैट बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। और के आपके क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप किसी भी चीज से मल्टीपल करते हो तो उसकी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप इसके आसानी के साथ भी प्रूफ देख सकते हैं। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उठाओ, उसको के साथ मल्टीपल करो, हर एक एंट्रीज में अंदर क्या हो जाएगा, के से मल्टीपल हो जाएगा। तो उसके जो प्लस माइनस या एंट्रीज का पहले 1 था, यहाँ पे अब अगर 5 मान लीजिए 5 से मल्टीपल करता हूं तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो उसमें सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक है, आप उसको के से मल्टीपल करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दो को सम करो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप प्रोडक्ट अगर आप दो मैट्रिक्स को कर रहे हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो, वो सिमेट्रिक बन भी सकता है
और नहीं भी बन सकता है। कब वो सिमेट्रिक बनेगा? अगर वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं तब वो सिमेट्रिक बनेगा। यानी कि अगर आपका ए बी और बी है, यानी कि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में जो है मल्टीपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करते हैं, पहले ए को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बी को राइट में, और अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं बी को राइट और ए को लेफ्ट, तो वो इक्वल नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन अगर वो इक्वल है, कम्यूट कर रहा है, यानी कि ए बी और बी ए इक्वल आ रहा है और दोनों सिमेट्रिक हैं, तब उनका मल्टीपल भी सिमेट्रिक आएगा। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि दे मस्ट बी कम्यूट, यानी कि ए बी बी ए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ए पावर के भी सिमेट्रिक होगी। आप कोई भी पावर कर लो, ए पावर 2, ए पॉजिटिव पावर है, माइनस करने के बाद आपको इनवर्स देखना है, क्या इनवर्स के लायक है, या डिवीजन तो मैट्रिक्स में हम करते नहीं है, डिवीजन इज नॉट अलाउड हियर इन मैट्रिक्स। आप ऐसे कभी देखा नहीं, ए आपके ऊपर मैट्रिक्स है, बी नीचे है। ठीक है, तो ए का कोई पावर कर लो, 2 3 4 5 6 8 10 100 11, पॉजिटिव है, इवन है, ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है वहां पे, है ना, 12th मैथ में हम देखा है आपने, a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक बनती है और a इंटू ए टी सिमेट्रिक बनती है। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे जो सिक्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है। अगर आपके पास के कोई स्केलर क्वांटिटी है और आप उसको मल्टीपल देते हैं ए के साथ, तो यहाँ पे भी सिक्यू सिमेट्रिक मेंटेन रहती है। ठीक है, और आप दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, सम, तब भी वो सिक्यू सिमेट्रिक ही बनती है। और अगर आप प्रोडक्ट करते हो ए और बी के, अगर वो कम्यूट करता है, अगर आपके पास ए एक सिक्यू सिमेट्रिक है, बी दूसरी मैट्रिक्स है, वो भी सिक्यू सिमेट्रिक है, आप दोनों को मल्टीपल करते हो और अगर उन्होंने कम्यूट किया तब वो सिक्यू सिमेट्रिक नहीं रहेगा, तब वो सिमेट्रिक जाएगा। अगर उन्होंने एंटी कम्यूट किया, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में एंटी कम्यूट करें, एंटी कम्यूट मतलब आपका ए बी जो निकल के आ रहा है वो माइनस टाइम्स बी ए निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटी कम्यूट। अगर वो एंटी कम्यूट कर रहा है तब आपके जो प्रोडक्ट भी है वो भी सिक्यू सिमेट्रिक है, लेकिन वो एंटी कम्यूट करना चाहिए। और पावर पे यहाँ पे गड़बड़ है, पावर पे आप यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे हर पावर, जैसे सिमेट्रिक में हमने देखा था, हर पावर सिमेट्रिक, ए पावर 2 भी सिमेट्रिक, ए पावर 3 भी सिमेट्रिक, लेकिन सिक्यू सिमेट्रिक के केस में ये ट्रू नहीं है। आपका ऑड पावर मेंटेन रखेगा। अगर आपने ए एक सिक्यू सिमेट्रिक है और अगर आप उसने ए पावर 3 किया, ए पावर 5 किया, ए पावर 7 किया, तब वो सिक्यू सिमेट्रिक है। लेकिन इवन पावर पे आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी सिक्यू सिमेट्रिक थी, अब वो भी सिक्यू सिमेट्रिक रहेगी। तो यहाँ पे याद रखना है, प्रोवाइडेड दैट पावर इज ऑड। तो इफ ए इज सिक्यू सिमेट्रिक, ए पावर 2 के लिए आप नहीं बोल सकते, ए पावर 3 के लिए आप बोल सकते हैं, ए पावर 5 के लिए आप बोल सकते हैं, ए पावर 7 के लिए, ए पावर एनी ऑड पावर के लिए आप सिक्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है, ए पावर के इज सिक्यू सिमेट्रिक प्रोवाइडेड दैट के इज ऑड। देखिए ये प्रॉपर्टी है, A-80 हमें सिक्यू सिमेट्रिक देता है कोई भी मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हर्मिशन और सिक्यू हर्मिशन के लिए भी ट्रू है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यूनिकली एक्सप्रेस होते हैं। ये जवाब मैंने 3 प्रश्न, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, हर्मिशन और सिक्यू हर्मिशन। ठीक है, इफ ए एंड बी आर हर्मिशन एंड के इज एन स्क्वायर, यहाँ पे मैंने देखे, यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा, मैं पर्सनली मोहम्मद रफीक सर, ये मेरा सीनियर था, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कश्मीर यूनिवर्सिटी के दौरान। मैं रफीक सर से इनवाइट करता हूं कि वो चैट बॉक्स में आए या अनम्यूट करे, यहाँ पे वो बता दीजिए अगर ए और बी हर्मिशन है। ये खाली मैं रफीक सर को है ना दिल्ली रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे वो आए। ए और बी हमारे पास अब हर्मिशन है, हमें के ए बोलना है, यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा है। के ए क्या हो सकता है, क्या हर्मिशन होगा हर के पे या नहीं होगा? हाँ रफीक सर, अगर रफीक सर यहाँ पे है, मैंने लाइफ में बहुत टीचरों के पास सीखा है और रफीक सर उनमें एक हैं। मुझे मजा आता था रफीक सर के पास बैठना और उनसे सीखना। रफीक सर हैं यहाँ पे कि नहीं? मुझे लग रहा है नहीं है। चले ठीक है, अगर ए और बी हमारी दो मैट्रिक्स है, हर्मिशन है, और के एक स्केलर क्वांटिटी है, तब क्या के ए भी हर्मिशन होगा? नहीं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। यहाँ इस केस में जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा था, किसी भी चीज से आप मल्टीपल करते तो सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिक्यू सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हर्मिशन के केस में
फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास एक हर्मिशन मैट्रिक्स है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो वैलिड है, हर्मिशन और सिक्योर हर्मिशन में हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आते हैं। अगर आप उसको आप प्योरली आई से मल्टीपल करो, आप आई से इमेजिनरी वैल्यू से आप इसको मल्टीपल करते हो तो वो हर्मिशन नहीं बन जाती है, वो सिक्योर हर्मिशन की तरफ जाती है। तो यहाँ पे के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या के रियल है या क्या के इमेजिनरी है। तो अगर के आयोटा आप आयोटा से आप हर्मिशन को मल्टीपल करते हो तो वो हर्मिशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इसलिए नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा है कि के ऑलवेज हर्मिशन आपको नहीं देगा। आपको के का नेचर देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्या इमेजिनरी है क्या रियल है। अगर ये आयोटा से आप मल्टीपल करते हो तो हर्मिशन सिक्योर हर्मिशन में चेंज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन है, ठीक है। तो के यहाँ पे हर के लिए ये ट्रू नहीं है। तो सम ऑफ द ट्रू हर्मिशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज हर्मिशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोडक्ट करो दो हर्मिशन मैट्रिक्स को, अगर वो कम्यूट कर रहे हैं, अगर ए बी और बी ए आपका इक्वल आ रहा है तब प्रोडक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर्मिशन के कोई भी पावर आप कर लो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, पॉजिटिव पावर कुछ भी आप कर लो तो हर्मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हर्मिशन के केस में। सिक्योर हर्मिशन के केस में डिफरेंट है। यहां पे भी के में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ए एक सिक्योर मिशन मैट्रिक्स है और अगर आप उसको आयोटा से मल्टीपल कर रहे हो तो सिक्योर मिशन अब सिक्योर मिशन नहीं रहती है, ठीक है। रियल, जब तक तुम रियल से मल्टीपल करते जाओगे कोई भी रियल क्वांटिटी से, तब ना ही हर्मिशन पे कोई असर पड़ता है ना ही सिक्योर मिशन पे कोई असर पड़ेगा। लेकिन हर के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाँ, दो हर्मिशन का सम सिक्योर हर्मिशन ही रहता है और प्रोडक्ट भी वही जो सिमेट्रिक के केस में रहता है वही यहाँ पे भी रहता है कि अगर उन्हें एंटी कम्यूट किया है तो वो रहेगा। अगर यानी कि अगर ए बी माइनस ए बी ए के बराबर आ रहा है तब वो सिक्योर हर्मिशन ही रहेगा। लेकिन अगर उन्हें कम्यूट किया है, ये भी यहाँ पे कंडीशन है ना, अगर ए सिक्योर हर्मिशन है बी भी सिक्योर मिशन है और आपस में इन्होंने कम्यूट किया तब दोनों का प्रोडक्ट, जबकि वो बेसिकली सिक्योर हर्मिशन था, और वो हर्मिशन चला जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ए बी सिक्योर मिशन है, बी भी सिक्योर मिशन है और ए बी ने आपस में कम्यूट किया तब उनका प्रोडक्ट हर्मिशन के ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम ऑड पावर दे दो, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है वो सिक्योर मिशन है, आप ए पावर 3 पे जाओगे, ए पावर 5 पे जाओगे, ए पावर 7 पे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑड पावर पे सिक्योर मिशन ऑलवेज सिक्योर मिशन ही रहेगा। लेकिन इवन पावर पे जैसे कि सिक्योर सिमेट्रिक केस में आपने देखा है तब जाके ये गड़बड़ कर देगा, तब जाके सिक्योर मिशन ये नहीं रहेगा। सेम ये वाला आपने सिमेट्रिक में देखा था, सिमेट्रिक में देखा था, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसपोज के बदले हमने ट्रांजुगेट यूज किया है। और यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखा है, रियल सिमेट्रिक और रियल सिक्योर सिमेट्रिक हर्मिशन और सिक्योर मिशन। ये तो ये सिंपल है। अगर आप रियल सारे एंट्रीज रियल ले रहे हो हर्मिशन में या सिक्योर मिशन में तो आपको सिमेट्रिक और सिक्योर सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम आके यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये हमारे पास 10 एक्सरसाइजेस हैं। जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, चैट में आना चाहते हैं चैट में आ सकते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब ये इजी क्वेश्चंस हैं, अब हम इनको कर सकते हैं अच्छे से। तो चैट बॉक्स में कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये पहला हमने रफीक सर ने बता दिया कि कोई भी, देखिए ए सिमेट्री का कोई भी पावर कर लो सिमेट्रिक ही रहता है, हमने देखा है। किसी भी स्केलर से इसको मल्टीपल करो तो सिमेट्रिक ही रहता है। तो ये वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक है, सिमिलरली ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, सिमिलरली ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है। तो आप सम करने के बाद सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो गिवन रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है हमारे पास आई है तो ये सिमेट्रिक ही रहेगी। लेकिन क्या इस केस में ट्रू है? हाँ, यहाँ पे भी ट्रू है। सिक्योर सिमेट्रिक यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं, सिक्योर सिमेट्रिक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सिमेट्रिक सिक्योर ऑड पावर पे। देखिए एक बार फिर हम वापस जाते हैं। ये अगर हमारे पास दोनों सिक्योर सिमेट्रिक है और अगर आप इसको पावर ऑड कर रहे हो तब वो सिक्योर सिमेट्रिक ही रहे। पावर अगर हमारा ऑड है तो हम सिक्योर सिमेट्रिक ही करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आएगा। देखिए ए पावर 3 सिक्योर सिमेट्रिक ए थी, ऑड पावर किया हमने तो सिक्योर सिमेट्रिक ही रह गई। बी सिक्योर सिमेट्रिक थी, उसके ऊपर 9 पावर लगा दिया तो ऑड पावर लगा दिया तो सिक्योर सिमेट्रिक ही है। स्केलर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 के साथ आप मल्टीपल दे रहे हो तो सिक्योर सिमेट्रिक ही रहेगा, 18 के साथ मल्टीपल दे रहे हो तो ये सिक्योर सिमेट्रिक ही रहेगा। फिर दो सिक्योर, ये भी आप सिक्योर सिमेट्रिक बन गई आपकी, ये भी आपकी आप सिक्योर सिमेट्रिक बन गई। दोनों का आपने सम किया है तो सम भी वैलिड है। तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैं ये आपकी सिक्योर सिमेट्रिक बनेगी। यानी कि 7a क्यूब प्लस 18 b पावर 9 इज अगेन ए सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे पे जाते हैं, दोनों सिक्योर सिमेट्रिक है।
क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक ही रहेगी? अब आप अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक ही इसमें अगर आप यहां पे भी देखो प्रॉब्लम यहां ही है, बी पावर 2, बी पावर 2, बी सिक्यू सिमेट्रिक थी आपकी, लेकिन आपने उसको 2 बार मल्टीपल किया है, और 2 बार मल्टीपल करने के बाद वो सिक्यू सिमेट्रिक नहीं रहती है। यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया कि अगर आपके पास एक सिक्यू सिमेट्रिक है, जब तक आड पावर आप रखोगे तब तक आपका काम बनता जाएगा, जब भी आप इवन पावर दोगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपका मामला गड़बड़ करेगा। तो बस हमें एक ही अगर आप एक कुछ भी नहीं है, यानी कि सिक्यू सिमेट्रिक नहीं है, दूसरी सिक्यू सिमेट्रिक है, इनको आप अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो सिक्यू सिमेट्रिक की कोई गारंटी नहीं है, तो ये वाली आपकी सिक्यू सिमेट्रिक नहीं देगी। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाली है, दोनों सिक्यू। अब ऐसे हम जाएंगे इस पे 5 पे, ये सारा सम आपको समझ आ गया। अब 5 पे जाएंगे हम, ए और बी सिमेट्रिक है, और यहाँ पे एक कंडीशन दी है, ए बी कम्यूट कर रहा है, दोनों कम्यूट कर रहे हैं, ए बी कम्यूट कर रहा है, तो क्या जो आपका रिजल्टिंग है क्या ये सिमेट्रिक रहेगा? हाँ, 100% सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि आपका ए सिमेट्रिक है, ए पावर 3 सिमेट्रिक रहेगा, 7 के साथ मल्टीपल करने के बाद ये सिमेट्रिक ही रहेगा। बी पावर 6 आपका सिमेट्रिक रहेगा, 18 के साथ कोई मल्टीपल कर लो तो कोई मसला नहीं, तो सिमेट्रिक ही बन जाएगा। दो यहाँ पे मसला हो सकता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करते हैं वो सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन दी है कि ये कम्यूट कर रहा है तो सिमेट्रिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इटसेल्फ है सिमेट्रिक, तो आप इसको माइनस कर रहे हो आइडेंटिटी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये रिजल्टिंग जो है ये आपका सिमेट्रिक ही रहेगा। यहाँ पे लिखा है इसने सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक हैं। मैडम वेट पंप के विकास मैडम, एक सेकंड, यहाँ पे ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, और दोनों एंटी कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। तो हमें ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक रहेगा या कुछ और रहेगा। देखिए ए सिमेट्रिक है, क्यूब करने के बाद क्या रहेगा, क्यूब 6 सिमेट्रिक ही, लेकिन इसने कंडीशन दिया है एंटी कम्यूट वाला। तो एंटी कम्यूट में जब आप दो यहाँ पे जोड़ लोगे, दो को मल्टीपल करोगे, ए बी आपका सिमेट्रिक नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कुछ। तो इस वाले केस में सिक्यू सिमेट्रिक है और दोनों एंटी कम्यूट कर रहे हैं, और पावर भी देखिए ऑड देखना है, यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे भी ऑड पावर है, और मल्टीपल भी आपको सिक्यू सिमेट्रिक ही देगा, ये भी आपको सिक्यू सिमेट्रिक ही देगा, ये भी आपको सिक्यू सिमेट्रिक ही देगा, तो ये वाली आपको सिक्यू सिमेट्रिक ही देगा। ठीक है, अब ये हर्मिशन वाले केस में भी सेम ऐसा ही चलेगा, मैं इसको स्किप भी करता हूँ। यहाँ पे ए में प्रॉब्लम आएगी, अगर यहाँ पे ए में देखना है कि ए पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे तो ए सब कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे हर्मिशन में ए को देखना है कि क्या ए आयोटा है नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बता सकते। तो सिमिलर केसेस हैं तो हम इनको स्किप भी करते हैं। ठीक है, हमारा आज 12:30 तक है, तो हम 12:30 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने लिए थे जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स में भी आते हैं, हमने देखे हैं, तो इसको हम स्किप भी करते हैं। इसकी नेक्स्ट, हाँ, अब हम डिटरमिनेंट पे जाते हैं। पहला यहाँ पे जो है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे हम सेट में सबसेट देखते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स का भी एक सब मैट्रिक्स होता है। सब मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस मैट्रिक्स को हम किसी के सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखी है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग बाय जीरो और सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ बट नॉट ऑल। यहाँ पे ये वाली कंडीशन याद रखना है, बट नॉट ऑल इज सेड टू बी अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में आपने कुछ भी नहीं निकाला, यानी कि ए को आपने, दैट मीन्स जैसे हम सेट थ्योरी में कहते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पे भी है एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। तो एक को अगर आप कोई ना ही एक भी जीरो, कोई रो नहीं निकालते हो, ना जीरो रो जीरो कॉलम, ना ही कोई रो निकालते हो, ना ही कोई कॉलम ओमिट करते हो, आप सोबूत ऐसे ही मैट्रिक्स जैसे हैं वैसे ही हम रखते हैं, पूरा वैसे ही, तो उसको भी आप सब मैट्रिक्स कहते हो। तो ये, और दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ लिखा है सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ, अगर आप कुछ रो निकालते हो जो बचता है, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप देख रहे हैं मैंने सेकंड कॉलम गायब किया है, तो जो A1 है, एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड,
सॉरी, एक टेक्निकल एरर आया था। ठीक है, तो एक रो, अगर आप कुछ रो निकालते हो, सम रोज, यानी कि आप एक भी निकाल सकते हो, दो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जो मैंने A1 है, इसमें मैंने सेकंड कॉलम निकाला है, जो द रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, ये आपकी सब मैट्रिक्स बनती है। और आप सम कॉलम, कॉलम ही तो निकाला है। और अगर आप रो भी निकालना चाहते हो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे रोज और सारे कॉलम नहीं निकालना है कि आपकी एक नल मैट्रिक्स बच जाएगी, वो सब मैट्रिक्स नहीं होती है। ठीक है, और अगर ये देखो यहाँ पे A4, ये वाले सारे एग्जांपल्स हैं सब मैट्रिक्स के, लेकिन A4 इज नॉट ए सब मैट्रिक्स। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें आपने कौन सा रो और कौन सा कॉलम निकाला है। आपने 2 5 है, 2 5 2 5 रखा है, आपने 3 रखा है ये वाला, और अगर आप सेकंड कॉलम इसमें निकाल रहे हो तो 6 को भी निकालना था। अगर आपने 6 को निकाला है तो 3 को भी निकालना है। मैंने 3 को यहां ही रखा है और 7 को रखा है, मैंने इस टाइप के कोई निकाला है 4 6। तो ना ही 4 6 कोई रो है, ना ही 4 6 कोई कॉलम है। हाँ, ये एंट्रीज हैं ए के, लेकिन कोई कॉलम नहीं है, कोई रो नहीं है। तो A4 इज नॉट ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स A। तो ठीक है, तो डिफिनीशन के हिसाब से A1 A2 A itself इज अ सब मैट्रिक्स, A1 A2 A3 जो है ये सारे के सारे सब मैट्रिक्स हैं, लेकिन A4 इज नॉट ए सब मैट्रिक्स। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अगर आपके टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स किसी के भी बोल रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है और सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितने आप बना सकते हो? तो ये कॉम्बिनेशन से आपको एक फार्मूला मिलेगी 2 पावर m-1 इंटू 2 पावर n-1। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये था हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जो हमारा एक और चीज है वो है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। एक होता है सब मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का, और दूसरा चीज होता है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में क्या होता है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो आप निकालते हो ना मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, उसके डायगोनल एलिमेंट्स और ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उनके डायगोनल एलिमेंट्स वही होने चाहिए। ठीक है, a square submatrix of a square matrix A is said to be PSM, means principal submatrix of A if it is diagonal elements are also diagonal elements of A, यानी कि उसके diagonal elements भी वही होने चाहिए। देखिए ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और ये इसका सब मैट्रिक्स है 5 6 8 9। यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैंने निकाला है, तो बाकी क्या बचा है 5 6 8 9। अगर आप इसके डायगोनल एंट्रीज देखोगे वो है 5 9, और इस मैट्रिक्स के भी अगर आप डायगोनल एंट्रीज देखोगे वो भी 5 9 ही है, यानी कि इसके डायगोनल एंट्रीज इसी के डायगोनल एंट्री से निकले हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, दिस इज अ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ये भी आपकी एक प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है क्योंकि ये इसी से निकला है, और 5 इसका एक ही एलिमेंट है, वो डायगोनल एंट्रीज है, और यहाँ भी अगर आप 5 पे देखोगे वो भी इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो ये इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है सब मैट्रिक्स और दूसरा होता है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, और तीसरा जो होता है LSM यानी कि लीडिंग सब मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे बहुत ऐसे बुक्स भी आपको मिलेंगे जहां पे लीडिंग सब मैट्रिक्स और प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स एक ही मानते हैं, और कुछ बुक्स ऐसे हैं जहां पे लीडिंग सब मैट्रिक्स थोड़ा बहुत और एक्सटेंड करता है। वो बोलता है कि अगर आप सब मैट्रिक्स को निकालते हैं, लीविंग लास्ट वाले, अगर आप लास्ट के कुछ रो और कुछ कॉलम निकालते हो, जो आपका मैट्रिक्स फ्रंट वाला बचता है उसको बोलते हैं लीडिंग सब मैट्रिक्स। यानी कि a principal sub matrix of a square matrix is said to be a leading sub matrix of A if it is obtained by leaving some of the last rows and the corresponding columns। यानी कि अगर हम इसके थर्ड रो निकालते हैं और थर्ड ही कॉलम भी निकालते हैं, जो बाकी जो बचता है मैट्रिक्स उसको आप कहते हैं लीडिंग सब मैट्रिक्स। जैसे कि ये वाला 1 2 5 4 5, ये मैंने यहां से लिया है 1 2 4 5, तो यहां मैंने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को निकाला है, यानी कि लास्ट का एक रो और लास्ट का एक कॉलम मैंने निकाला है। जो बच गया है 1 2 4 5 दैट इज नोन एज लीडिंग सब मैट्रिक्स। लेकिन कुछ बुक्स ये भी लिखते हैं कि लीडिंग सब मैट्रिक्स और प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने बोथ लास्ट के दो रोज ये वाला और ये वाला रो निकाला है और लास्ट के दो कॉलम निकाले हैं, और बचा क्या है 1, और 1 इज द लीडिंग सब मैट्रिक्स ऑफ द ए। तो ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स और लीडिंग सब मैट्रिक्स है। अब हम डिटरमिनेंट पे जाते हैं। डिटरमिनेंट हम सबको बच्चों को भी अच्छी तरह से निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता था कि बड़े बड़े डिटरमिनेंट्स आते थे, बड़े बड़े मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछता है, और
उसमें वो कुछ ऐसा मैट्रिक्स, उस टाइप का मैट्रिक्स बनाते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता है, और उसको विदाउट फाइंडिंग द डिटरमिनेंट हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अक्सर उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो आपका ज्यादा काम नहीं करवाते, आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक यूज करके उसका डिटरमिनेंट बोलना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करने जाएंगे तो हम कर सकते हैं, बच्चे भी आसानी के साथ डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं अलॉन्ग किसी भी रो और किसी भी कॉलम जाके वो करते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा यूज होता है उसमें। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डायरेक्टली मैट्रिक्स को देखते उसका, अगर हमें नेचर उसका पता चल गया तो हम विदाउट फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ये गेस कर सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की पहले डिफिनीशन है। डिटरमिनेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो एसोसिएट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद। ये डिफिनीशन है +2 लेवल तक है, ठीक है। तो कुछ अगर आप इससे थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो डिटरमिनेंट एक फंक्शन होता है पूरे MNR से या MNF से, यानी कि सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स से किसी भी फील्ड पे हम जाते हैं तो वो एक यूनिक क्वांटिटी मिलता है, दैट इज द डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन फ्रॉम MNF टू और एनी फील्ड F, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैसे हम डिनोट करते हैं, हम दो ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन के बीच में मैट्रिक्स का जो अगर A मैट्रिक्स से डिनोट किया है तो ये हम सबको पता है। इसके बाद माइनर और कोफैक्टर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बोल देंगे। माइनर क्या होता है, अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना आता है तो हम एक ऑर्डर कम करके उसको अगर किसी भी एलिमेंट के अलोंग करते हैं, अगर हम Aij के अलोंग करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij। तो एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं। तो कोवेक्टर में सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क होता है कि अगर -1 i + ij से मल्टीपल करते हैं, अगर वो नेगेटिव देता है तो माइनस लगाते हैं, अगर वो पॉजिटिव देता है तो प्लस लगाते हैं। तो ये सिंपल थिंग्स है, हम ज्यादा फोकस करेंगे डिटरमिनेंट्स पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होती है वो हमेशा होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी हमें बहुत सारे डिटरमिनेंट्स में यूज होते हैं, जिससे हमारा हार्ड वर्क थोड़ा बहुत कम होता है अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं ABCD, हम उसको एक ही साथ अगर पहले हमने उसको मल्टीपल किया है फिर डिटरमिनेंट निकाला है, दैट इज सेम एज अगर हम अलग अलग करके डिटरमिनेंट निकालते हैं फिर उनको मल्टीपल करते हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टीज आती है। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें क्वेश्चन ये आया है कि आप A⁵ का डिटरमिनेंट निकालो, A⁵ का डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या करते थे हम A करेंगे 5 बार, तो थोड़ा टाइम लगेगा A 5 बार करने में, फिर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है उसी से सेकंड निकली है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम पहले एक ही मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट करेंगे, जो एक क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो हमें मिलेगा उसको 5 बार मल्टीपल करोगे तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा। तो इससे हमारा थोड़ा बहुत काम जो है वो कम हो सकता है। अब ये बहुत सारे यहाँ पे मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, और उनका पॉसिबल डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे देख लिया है कि किस मैट्रिक्स का किस टाइप का डिटरमिनेंट हो सकता है। और उससे हमें क्या पता चलेगा, जब भी हमें एग्जाम में बच्चों को जब कोई एग्जाम्पल आती है जिसमें हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, तो अगर हमें ये पता चल गया किसी भी सोर्स से, अगर हमें ये पता चले कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये एडोपोटेट है, इन्वोल्ट्री है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, सिक्विसिमेट्रिक है, किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के बगैर उसका डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली है आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। आइडोपोटेंट मैट्रिक्स का जो पॉसिबल डिटरमिनेंट होता है वो या तो 0 होता है या 1 होता है। एक बात यहाँ पे याद रखना है, कन्वर्सली इसका ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है तो हम बोलेंगे एडोपोटेंट होगी, नहीं, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर एडोपोटेंट है उसका डिटरमिनेंट सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह यानी कि अगर हमें एक क्वेश्चन कितना भी बड़ा आएगा, अगर हमें किसी भी सोर्स से या गिवन कंडीशन उसमें लिखी है कि जो आपकी गिवन मैट्रिक्स हैं ये एडोपोटेंट हैं, तो हमें ये पहले ही कंफर्म करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो तो या 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। इसी तरह इन्वोल्ट्री पे अगर आप बात करोगे, अगर आपको पता चला कि इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 1 या माइनस होगा। निलपोटेंट की मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 आएगा। ऑर्थोगोनल की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 और -1 ही आएगा आपका। यूनिटरी मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट आपको मॉड्यूलस यूनिटी आएगा। यहाँ पे मॉड मैंने मिस किया है,
ये ई आयोटा थीटा नहीं है, ये एक्चुअली मॉड ऑफ ई आयोटा थी, जो टाइपो एरर है यहाँ पे, मॉड मिस हुआ है यहाँ पे, मॉडुलस यूनिटी है। आपका कोई भी ऐसा क्वांटिटी आएगा जिसको आप मॉड करने के बाद आपको 1 मिलेगा, आपको मॉड ऑफ ई आयोटा थीटा दैट इज 1, आपको आयोटा भी आ सकता है, आपको माइनस आयोटा भी आ सकता है, यानी कि ऐसी ऐसी क्वांटिटीज आपके यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जिसका अगर आप मॉड करने जाओगे वो 1 देगा, दैट इज मॉडुलस यूनिटी। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा रियल होता है। सिक्योर हर्मिशियन मैट्रिक्स का दो चीजों से, अगर ऑड इसका ऑर्डर इवन है तो वो रियल ही देगा, लेकिन अगर इसका ऑर्डर ऑड है तो वो प्योरली इमेजिनरी दे सकता है या जीरो दे सकता है। इसी तरह सिक्वेंस सिमेट्रिक का ऑर्डर अगर ऑड है तो वो जीरो होगा, और अगर इवन है तो हम कुछ भी, नथिंग टू से, हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें इनको याद रखना है। हमने इनका देख भी सकते हैं एक एक करके कि कैसे एडोप्टेड का 0 और 1 हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने इनको एक एक करके देखा है। मैं थोड़ा बहुत जूम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और क्लियर आएगा, है ना। देखिए पहला वाला जो है एडोपोटेंट मैट्रिक्स। एडोपोटेंट मैट्रिक्स आप हम सबको पता है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसको आप स्क्वायर करोगे आपको ए ही मिलेगा। तो अगर आपको ये किसी सोर्स से ये पता चल गया कि एडोपोटेंट है तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करना है, इसका डिटरमिनेंट 0 या 1 ही आता है। कैसे, देखिए हमने दोनों तरफ से इसका डिटरमिनेंट लगाया है, फिर डिटरमिनेंट आप ए को इस साइड में लगाया तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इधर 0 और 1। तो कुछ दोनों में से एक हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो कम से कम अगर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें ये पता चल गया है द गिवन मैट्रिक्स इज एडोपोटेंट मैट्रिक्स, तो हम ऐसे दो ही ऑप्शन को ऑलरेडी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही आंसर आएगा, और 0 या 1। और अगर और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई तो हम दो में से भी एक को ही चुन सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इनवोल्ट्री भी है और एडोपोटेंट भी है तो हम 0 को भी खत्म कर सकते हैं यहाँ पे, तो 1 ही एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो याद ये रखना है कि अगर एडोपोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास और अगर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम किसी अलॉन्ग रो या कॉलम के नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट उस पर लगा देंगे एक लॉजिक इस्तेमाल करके, इसमें 0 या 1 आ सकता है। इसी तरह हमने दूसरा देखा है इनवोल्ट्री मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो इसका जो डिटरमिनेंट आप देख सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि डिटरमिनेंट जब आप यहाँ आयोटा को डिटरमिनेंट, आयोटा नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका जब आप डिटरमिनेंट लगाओगे तो इसका 1 ही आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज 1। तो इसमें दो ही ऑप्शन आते हैं आपको, या 1 आएगा या -1 आएगा। निलपोटेंट किसी भी पावर करने पे वो एक बार 0 बन ही जाती हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्लियर दिख रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर आप देख लेते हैं तो इसमें या 1 आता है डिटरमिनेंट या -1 आता है। देखिए हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दिया बोथ साइड्स में। यहाँ पे जब आप डिटरमिनेंट लगाते हैं, जो अभी हमने कंडीशन देखी थी पहली, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी होता है, हम अलग अलग डिटरमिनेंट को कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, मैंने अलग अलग डिटरमिनेंट लगा दिया है, ए को अलग डिटरमिनेंट लगा दिया है और ट्रांसपोज को अलग डिटरमिनेंट लगा दिया है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट आइडेंटिटी को लगा दिया है। और हमें ये भी एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि ट्रांसपोज करने पे आपके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम रहा है, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज सॉरी डिटरमिनेंट जो है वो 1 है। ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीपल है, सॉरी यहाँ पे ऐसी लाइन खींची है जो लग रहा है कि ये माइनस है, ये माइनस नहीं है, ये दोनों एक ही डिटरमिनेंट के अंदर है और ये मल्टीपल है, ए इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो ये ऐसे लाइन लगी है, तो ये लाइन नहीं है, मल्टीपल है, ए इंटू ए है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आपका 1 आया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे भी आपके दो चॉइसेस हैं, या 1 आ सकता है या -1 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स को हमें देखना है कि क्या आ सकता है। यूनिटरी मैट्रिक्स की बात जब हम करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स हमारे जहन में आता है, ठीक है। हमारे हम इमेजिन करने लगते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो a इंटू ए, ये डिफिनीशन है पहले, अगर हम a और a ट्रांजुगेट करते हैं तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी, डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी यूनिटरी मैट्रिक्स की है। इसके बाद हमने डिटरमिनेंट इसमें लगा दिया है दोनों तरफ से, यहाँ पे डिटरमिनेंट और यहाँ पे डिटरमिनेंट, और ये वाला डिटरमिनेंट तो 1 ही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है। यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ बाद में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि बाहर रखा है और ट्रांसपोज हटा दिया, क्योंकि मुझे पता है ट्रांसपोज करने पे आपके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज हटा के सिर्फ बाहर रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं सपोज करता हूं जो डिटरमिनेंट ए का निकलेगा, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, आई सपोज दैट इट विल बी सम कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा y। तो मैंने सपोज किया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज x प्लस आयोटा y। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो, अब आप
इसको आप सॉल्व कर लो तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन, मॉडुलस यूनिटी, यानी कि मॉड ऑफ आयोटा थीटा, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका मॉड 1 होगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट हमें आता है वो मॉडुलस यूनिटी आता है, ठीक है। तो कुछ मिनट और है हमारे पास, अब जाते हैं हम हर्मिशन का। अगर हमें हर्मिशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जानना है तो हमने बताया था यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स, देखिए ये डिफिनेशन है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर हम इसमें डिटरमिनेंट करने बैठेंगे तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज खत्म कर दूंगा, ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी मैंने सपोज किया है कि एक्स प्लस आयोटा वाई इसका डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पे मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई लगा दिया, बार लगाने के बाद क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आयोटा वाई यहाँ आएगा, तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। जब आपका y इक्वल टू 0 आ गया है तो आपका मतलब है इमेजिनरी पार्ट खत्म, बचा क्या है, रियल पार्ट, तो आपका डिटरमिनेंट क्या आएगा, सिर्फ रियल, प्योरली रियल। इसलिए हम कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एनी हर्मिशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्योरली रियल, ठीक है, तो वो रियल है, ठीक है। इसी तरह हम जाते हैं सिक्योर मिशन के पास। जब हम सिक्योर मिशन के पास जाएंगे तो ये डिफिनेशन, यही बोलते हैं ना, ये डिफिनेशन है। तो अब हमने दोनों तरफ से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें देखनी है, डिटरमिनेंट हमने दोनों तरफ से लगा दिया है, यहाँ पे अंदर क्या बचा है, ए बार ट्रांसपोज, ए बार, और बाहर मैंने निकाला है -1 पावर n। ये यहाँ पे देखना है, जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स फॉर्म में ए, अगर उसमें एंट्रीज हैं 2 4 6, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, अगर मैं इसमें 2 बाहर निकालता हूं, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट की नहीं, 2 इसमें बाहर निकालता हूं तो मैं आसानी के साथ 2 बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर यही केस मैं अप्लाई करता हूं डिटरमिनेंट में, यानी कि अब मेरे पास मैट्रिक्स नहीं है, अब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, अंदर एंट्री सेम है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, अगर मैं यहाँ पे 2 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पे 2 बाहर नहीं निकाल सकते मैं अकेला, क्योंकि जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं वो अलोंग ए रो करते हैं, हम एक रो के अलोंग करते हैं। तो मुझे जो 2 बाहर निकाला है इसका मतलब है मैंने 2 तीनों रो से बाहर निकाला है, तो मुझे बाहर जो क्वांटिटी आएगी वो 8 आएगी, 2 पावर 3 आएगा, जितनी उसमें रोज होंगे उतनी बार वो 2 बाहर आएगा। फिजिकली तो मैं, अगर आप देखोगे फिजिकली तो ऐसा लगेगा कि 2 बाहर आ रहा है, अंदर तो 2 4 6 था, 2 बाहर आने के बाद 1 2 3 बचा है। लेकिन डिटरमिनेंट जब हम डिफिनेशन देखते हैं, हम अलोंग रो करते हैं, तो 2 आप अगर आप एक रो से बाहर निकालते हैं तो 2 रहेगा फिर। लेकिन जब आप बाहर ही निकालते हो 2, तो आप तीनों रो से इसको बाहर निकालते हो, तो आपकी जो बाहर क्वांटिटी मिलेगी वो 2 पावर 3 होगा, यानी कि 3 उसका ऑर्डर है। तो इसी तरह जब आप डिटरमिनेंट में कुछ भी बाहर निकालते हो, कोई भी क्वांटिटी बाहर निकालते हो, वो कितनी टाइम्स बाहर आता है, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो सेम केस यहाँ पे अप्लाई हुआ है, मैंने अंदर रखा है ए बार ए ट्रांसपोज, बाहर निकाला है -1 पावर n, मैंने माइनस को बाहर निकाला है डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट से जब भी ये बाहर निकलेगा, ये कितनी बार बाहर निकलेगा, जितने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो -1 कितनी बार बाहर निकलेगा, n टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1, एंड दैट गिव्स अस -1 पावर n। तो ये बाहर आ गया आपका -1 पावर n, और डिटरमिनेंट बच गया इतना, ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बाकी सेम कहानी रहती है जैसे हमने हर्मिशन में देखा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ट्रांसपोज को यहाँ खत्म किया है क्योंकि ट्रांसपोज से डिटरमिनेंट पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि इसका जो डिटरमिनेंट था वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करने के बाद आप कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे यहाँ पे, आपने यहाँ माना है आप 2 केस है, एन आपका ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, यानी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है। हम दोनों केस मानते हैं, एन हमने ऑड माना है, जब एन ऑड माने तो -1 यहाँ प्रेजेंस दिखाएगी अपनी, तो -1 यहाँ पे हो सकता है, तो मैंने वो -1 यहाँ पे रखा है। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपको एक्स क्या मिला है, 0, यानी कि आपका रियल पार्ट फिर खत्म हो रहा है। जहां से हमें पता चलता है कि अगर आपके पास सिक्योर मिशन मैट्रिक्स हैं और अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हो, तो आपका रियल पार्ट बचेगा नहीं, तो आपके पास क्या बचेगा, आयोटा वाई, और वाई की भी कोई गारंटी नहीं है, वाई रियल है तो वाई 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अगर वाई 0 है तो ये उस पूरे डिटरमिनेंट को 0 बना देगा, और अगर y नॉन 0 है तो ये इसको क्या बनाएगा, आयोटा समथिंग, आयोटा 2, आयोटा 3, तो प्योरली इमेजिनरी। तो ऑड ऑर्डर के केस में, यानी कि एवरी सिक्योर हर्मिशन मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो होता है वो इधर 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। अब केस दूसरा है कि अगर n इवन है, इवन के केस में क्या हो जाएगा,
इवन के केस में ये -1 पावर 2 होगा, यानी कि -1 यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये वाली क्वांटिटी x माइनस आयोटा y होगा। अब x और x कैंसिल होगा, ऊपर y और y कैंसिल हो गए, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गए, तो हमें x y इक्वल टू 0 मिलेगा। इमेजिनरी यहाँ पे खत्म हो गया है, तो हमें डिटरमिनेंट निकला है x, और x क्या है, प्योरली रियल है, इमेजिनरी का इसमें रोल ही नहीं रहा, तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा हमारा, प्योरली रियल। ठीक है, इसके बाद हम जा रहे हैं, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे हो सकता है, तो हम डिफिनीशन यूज कर दिया a इक्वल टू a डैश, तो डिटरमिनेंट हमने चूज किया है, हमने मान लिया है कि इसका डिटरमिनेंट है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने के से कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता है, तो x प्लस आयोटा y आपको x प्लस आयोटा y है, तो आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई क्वांटिटी मिल रहा है फॉर एग्जांपल 5, और राइट हैंड साइड में भी आपको वही क्वांटिटी मिल रही है 5, ये कब पॉसिबल है, आपको 5 कब 5 है, हर एक x पे, हर एक y पे, यानी कि आपका हर एक एलिमेंट पे ट्रू है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आप क्या बोल सकते हैं, आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं रही है, ये एनीथिंग इज पॉसिबल हियर। सो इसीलिए हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम नहीं बता सकते, वो कुछ भी आ सकता है, इट इज ट्रू फॉर एवरी x एंड एवरी y, तो इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कोई फिक्स डिटरमिनेंट नहीं है। इसी तरह दूसरा जो है वो है सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम देखते हैं, ठीक है, इसमें सिक्यू सिमेट्रिक तो देखा नहीं देखा, a इक्वल टू माइनस ए डैश, सेम वही केस है, -1 पावर n कैसे बाहर आ गया, ये सिमिलर केस है कि कितनी बार इसका ऑर्डर है उतनी बार -1 बाहर आएगा, यहाँ पे भी ऑड का रो रहेगा, अगर n ऑड है तो ये -1 बन जाएगा, तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, 0। तो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है अगर ऑड ऑर्डर होता है, अगर इवन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y के बराबर होगा, तो दो नंबर आपस में हर वक्त बराबर होते हैं, तो इवन ऑर्डर के लिए कुछ भी पॉसिबल है। तो कंक्लूजन ये हुआ है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो डिटरमिनेंट 0 आएगा, अगर इवन ऑर्डर का है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये था डिटरमिनेंट बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स का। अगर हमें नेचर पता चले या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको इस टाइप की मैट्रिक्स है, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आप डिटरमिनेंट करने नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे ये सब चीजों को और डिटरमिनेंट बोल देंगे। और फाइनल यहाँ पे जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे इनवर्स का रोल है, हम इनवर्स को स्किप करते हैं, हम देखते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास दो टाइप के लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस उस वाले केस को हम कहते हैं जिसमें जो राइट हैंड साइड वाली जो बी मैट्रिक्स है वो 0 हो। अगर वो बी 0, यानी कि हमारे पास अगर इक्वेशन है 2x + 3y = 0, 4x + 5y = 0, यानी कि राइट हैंड साइड वाला अगर हमारे पास हर एक एंट्री 0 है, हर एक इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर हमारे पास 0 है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस। और अगर हमारे राइट हैंड साइड में जो एंट्रीज होते हैं, अगर उनमें एक भी हमें नॉन जीरो मिला, एक भी एंट्री, अगर हमारे पास 5 इक्वेशन है, 4 में हमें 0 0 0 0 मिला और 5th एंट्री में हमें कुछ नॉन जीरो एंट्री मिली, तो हम उस सिस्टम को कहते हैं नॉन होमोजीनियस। तो ये हो गया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। दो टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं लीनियर के, एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है। और दूसरा यहाँ पे हमारा होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हम किस सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं, अगर उसके पास सॉल्यूशन है। अगर उसके पास सॉल्यूशन है, चाहे एक है या इनफिनिट है, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अगर हम होमोजीनियस की बात करेंगे, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजीनियस की कंसिस्टेंसी हमें चेक नहीं करनी होती है, वो हमेशा कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा एक सॉल्यूशन तो देगा ही देगा। क्यों? वो सॉल्यूशन को, वो जीरो सॉल्यूशन होता है, ऑफ कोर्स दैट इज द जीरो सॉल्यूशन, बट दैट इज द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन होता है। यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 0, 4x + 5y = 0, तो अगर हम पुट करेंगे x = 0, y = सॉल्यूशन का एक्चुअली मतलब मकसद क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उन वेरिएबल्स को आप क्या वैल्यू पुट करोगे, आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। यानी कि आप x को क्या पुट करोगे, y को क्या पुट करोगे, जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का वैल्यू क्या आएगा, ताकि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगी, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेगा, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस सिस्टम में आपको जीरो सॉल्यूशन हमेशा आएगा।
यानी कि अगर आप x को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनको 0 0 पुट करोगे तो आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा, और होमोजीनियस में राइट हैंड साइड तो 0 होता ही होता है। तो 0 सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो वो सॉल्यूशन इसका 0 सॉल्यूशन होता है। बाद में वो दूसरी बात है कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो या लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो कितने हैं, दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन। बट होमोजीनियस सिस्टम possesses always a solution that is the zero solution। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। तो अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे, वो ऑलवेज कंसिस्टेंट नहीं होता है, वो ऑलवेज सॉरी यहाँ पे कहाँ गई स्लाइड, हो गया इसका कुछ, ये आ गया। और जो आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये ऑलवेज कंसिस्टेंट हो गए, इसमें सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो नॉन होमोजीनियस पे हमें चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमने मेथड देखे, हमने पहले मैट्रिक्स लिए, वो लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारा 12th में है वो पूरा स्क्वायर पे ही चलता है। हमारी अगर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की और हमें देखना है, और अब हम केस में जाएंगे होमोजीनियस की केस में। पहले हम होमोजीनियस को डिफाइन करते हैं, फिर नॉन होमोजीनियस को करते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस, अगर हमारे पास सिस्टम होमोजीनियस है और हम इसका तो एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, नो सॉल्यूशन की बात यहाँ पे होगी नहीं। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको क्या बनता है, वो फिर यूनिक सॉल्यूशन देता है। और अगर आपका डिटरमिनेंट 0 बनता है तो आपका उस केस में क्या आता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो या तो आपका एक सॉल्यूशन मिलेगा या तो आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। होमोजीनियस केस में दो ही पॉसिबिलिटी है होमोजीनियस में, या तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, या आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर आपका डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस केस में क्या होता है, आप पहले इसमें डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर वो नॉन जीरो मिला तो सेम हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इन केस आपका डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसमें हम एक स्टेप और जाते हैं, जो एडजुगेट या एडजॉइंट इसको बोलते हैं। एडजॉइंट आप ए निकालते हैं, उसको बी, जो आपके राइट हैंड साइड में आपकी नॉन जीरो मिलेगी, यहाँ पे नॉन होमोजेनियस केस में उनको आप मल्टीपल करते हो, अगर वो फिर 0 देते हैं, यानी कि पहले ए भी 0 दिया, डिटरमिनेंट आप ए भी 0 है और एडजॉइंट आप ए इंटू बी भी आपका 0 है, तब आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर यहाँ पे उसने धोखा दे दिया, यानी कि पहले 0 दे दिया डिटरमिनेंट और दूसरी बार चेक करने के बाद जब एडजॉइंट आप ए इंटू बी किया उसने नॉन जीरो दिया, तब इसके पास नो सॉल्यूशन रहेगा। बस दो ही सॉल्यूशन की, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये केस हो गया कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अब केस ऐसा भी आ सकता है अगर जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, जो 12th में नहीं है, 12th में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आई थिंक स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस है। लेकिन अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें रोज अलग है और कॉलम अलग है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जिसमें मान ले 3 रो है और 4 कॉलम है, या 4 रोज है और 5 कॉलम है, तो इस केस में हम डिटरमिनेंट फाइंड तो नहीं कर सकते ना। डिटरमिनेंट हम उस केस में फाइंड करेंगे जहां पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इफ वी हैव अ मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर, व्हिच इज एनी, जो आपकी m और n आपका जो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, m आपका 3 दे रहा है और n आपका 4 दे रहा है, तो उस केस में आप पहले ही डिटरमिनेंट नहीं कर पाएंगे। जब डिटरमिनेंट ही नहीं फाइंड कर रहे